So we are going to study today entropy and reversibility. Yeah. So the context of the previous lecture, how we described a reversible process or irreversible process. तो reversible process, if you recall, it's any process that अगर हम कोई भी system की whatever change, thermodynamics change करेंगे, so in the forward process, if heat is absorbed, in the reverse process the heat is released. ठीक है, such that in a reversible process net changes in a total entropy of a reversible process in the closed cycle it's equivalent to zero. ठीक है, it will only depend upon initial and final conditions, while in case of a irreversible process the net entropy is not zero, whatever it greater or less, so it's in a closed cycle is not zero. अब नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, वो जब when we try to define normally जो entropy of entropy we could not define in absolute terms. We said that entropy is a state function and its value will depend upon initial state and final state. ठीक है, so it's a state function, so its value will depend. So initial and final state में हम normally लेते थे कि we took equilibrium states, we took, because in non-equilibrium states things वो इसमें it will not work that way. ठीक है, that way we could define entropy of a given system क्या होगा. अब system में you have all sorts of processes, adiabatic processes, isochoric processes, isobaric processes, है ना, isothermal processes, whatever process they are. So how should we study entropy? And the point is the idea of जो entropy and reversibility तो आपके लिए ठीक है, but how we can conceptualize entropy and reversibility. Normally जो processes होते हैं they are irreversible. Perfect reversible process कोई नहीं है, ये dissipation होती है, friction होता है. ठीक है, so and that was the reason that how we define second law. हम जब कहते हैं ना entropy of the system is intrinsically going to increase. ठीक है, अब उसकी बहुत सारी definitions हैं. This has been stated in various ways. One of the ways of stating is that in terms of Carnot's ways of stating entropy, that you cannot have a perfect heat engine. Such that अगर आपके पास कोई सिस्टम होगा perfect अगर infinite, so you cannot have a closed cycle process में, such that कि total heat will not be left, there will be some residual heat left which is not totally got converted, है ना, such that अगर हम cycle को पूरा करेंगे. इस तरह एक और definition है क्लासेस कैल्विन की डेफिनेशन है कि जो आप नॉर्मली कहते हैं कि मतलब हीट विल, जो जिस तरह आप पोटेंशियल एनर्जी में है ना, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो इट कैन नॉट, सो इन एनी प्रोसेस इट्स नॉट दैट हीट विल नेचुरली फ्लो फ्रॉम बॉडी हैविंग ए लेसर टेम्परेचर टू ए बॉडी हैविंग ए, तो ये एक इनएडिक्वेसी है. सो अब वो ये, बट द प्रोसेस इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. जो साइकिल जो हमारे पास थे वो नॉर्मली हम टुक रिवर्सिबल प्रोसेसेस इनटू कंसिडरेशन. बट एंड जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस अगर नहीं भी होते थे, वी टुक इक्विलिब्रियम स्टेट्स, वी टुक फ्रॉम डायनेमिक, क्योंकि ये सिस्टम इवॉल्व करता है ना, इवन इफ दे आर गैस मॉलिक्यूल नॉर्मली हम लेते हैं. ठीक है, थिंग्स सिस्टम जो होगा इट्स डायनेमिकली इवॉल्विंग. तो हम नॉर्मली ले लेते थे इक्विलिब्रियम स्टेट्स फ्रॉम स्टेट ए टू, so that mimicked sort of reversible process. ठीक है, बट अगर हमारे पास irreversibility आती है, intrinsic irreversibility आती है, तो जो हमारा जो क्लासेस डिफिनेशन था ना, मतलब एंट्रोपी इट्स लाइक जीरो है ना, और dq1 by dt minus dq2 by in a closed cycle it is equivalent to zero.
मगर अगर हमारे पास irreversible process आएगा, last time I have so it's not necessary, you have to restate it. It will come out to be like this. It may less than or equal to 0. Greater than हो सकता है, but you have to define things in a reverse cycle. ठीक है, reverse cycle. So this is how we state. It can be greater or less than depending upon हम system और reservoirs को कैसे define करते हैं, in a forward cycle or in a reverse cycle. ठीक है. So for reverse cycles, for irreversible processes, the statement of this entropy or the second it can be stated this way. ठीक है. So entropy of reversible process SF minus SI, if it's a closed reversible process, so entropy will be given by, normally entropy is given by SF minus SI is equal to, है ना, dq by, ये basically state A to initial to final है. But अगर ये closed process है, it is a closed process, तो SF minus SI will be equal to 0. आएगा कि नहीं? ठीक है, SF minus S. So these SF minus S, these are initial and final states. So normally they can in a reversible processes. They are reversible processes में initial and final states. But ये है कि normally हम we take them as equilibrium states. We take them equilibrium states. But the statement holds for reversible processes. But when we take irreversible processes, we have to modify this definition by this. ठीक है. And before we are going to modify it, how we define system and reservoir. System and reservoir में आप कैसे करते हैं? We define जो system में heat होगी वो dQ by R होगी, and जो reservoir की heat होगी minus dQ by R होगी, है ना? जो Carnot cycle में हम define करते हैं ना, we define infinite bath, infinite heat bath, which has infinite capacity to absorb heat, बहुत गर्म, and infinite cold ये होगा. इसमें कितनी भी heat आप डालोगे, ठीक है, वो absorb खाएगा. So in that process अगर आप heat कोई भी आप उसी में cycle में हम define करते हैं, कोई भी engine कैसे work करेगा, perfect engine, हम heat इसको देते हैं, it will work, फिर वो cycle वो फिर लेता है, in the process some work is done, ठीक है, and the cycle, तो this is the way we normally. अब इसमें ये है कि अब एंट्रोपी एंड ये तो इरिवर्सिबिलिटी है. सो वी आर इन द फर्स्ट, थोड़ा सा हम पहले विल नॉट कंसंट्रेट ऑन रिवर्सिबिलिटी एंड विल कंसंट्रेट ऑन रिवर्सिबिलिटी, देन विल कम टू इरिवर्सिबिलिटी. ठीक है, ठीक है. सो जिस तरह हम कहते हैं ना कोई लिमिटेड सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक का लिमिटेड स्टेट इज क्लासिकल स्टेट. ठीक है. इन द सेम वे हम रिवर्सिबल प्रोसेस को एक पर्टिकुलर केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस भी ले सकते हैं, है ना, ऐसे भी वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एंड देन वी कैन हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन हाउ वी कैन डिफाइन एंट्रोपी एंड रिवर्सिबिलिटी, देन वी कैन गो फॉर एंट्रोपी एंड irreversibility, and then we can have a normal definition of second law, dq by dt is equal to 0 for reversible process. For irreversible process, the identity holds which was given by classes like this. ठीक है. and ये जो identity और inequality we can arrive also from how we define जो second law of thermodynamics के different statements है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक की एक स्टेटमेंट है, जूल्स ये कैल्विन की एक डेफिनेशन है, क्लासेस की एक definition. Even though they are logically, there's also an exercise how we can say they are logically stating the same thing in different ways. ठीक है. बेसिकली वो एक ही बात है, you are stating that in different sense ways. तो अब अगर एंट्रोपी एंड रिवर्सिबिलिटी लेंगे हम एंड और इसको अगर हम यूनिवर्स के साथ रिलेट करेंगे, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, तो अगर हम तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस? शाबाश, जरा बताओ. नहीं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या आएगा? शाबाश. नहीं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस
is zero. So I am stating this. जैसे अगर ये आप जैसे यूनिवर्स को हम डिफाइन करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो अगर हम एक को रिजर्वायर डिफाइन करेंगे एंड द अदर को सिस्टम डिफाइन करेंगे, ठीक है, we can have this statement. तो एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबिलिटी क्या आएगा? SF minus SI is equal to, so if you want to define it in terms of for reversible process, so this is so reversible process from state I to state F, ठीक है, state I to state F. अब इसमें ये है कि रिवर्सिबिलिटी बहुत सा इरिवर्सिबिलिटी, सो योर रिवर्सिबिलिटी तो ठीक है, इधर वी डिफाइन रिवर्सिबिलिटी, और फॉर आवर अप्रॉक्सीमेट रीजंस वी डिफाइन टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स, डायनेमिकली इक्विलिब्रियम स्टेट्स इन फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है, विच इज तो दैट विल मिमिक एन रिवर्सिबल प्रोसेस. मगर जो रियल नेचर में जो प्रोसेसेस हैं दोज आर irreversible processes. So irreversible processes, if you want to generalize this statement to the irreversible processes also, so that we can arrive at an inequality, तो हम will first define irreversibility की examples हम लेंगे nature में कौन कौन है. For example, processes which are exhibiting irreversibility, irreversibility. तो इसमें मैकेनिकल इरिवर्सिबिलिटी भी आएगी, इलेक्ट्रिकल इरिवर्सिबिलिटी भी आएगी, ठीक है, केमिकल इरिवर्सिबिलिटी भी आएगी, ठीक है. यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी कैन व्हाट आई शुड से स्टेट इरिवर्सिबिलिटीज कैसी कैसी हैं. हाँ दैट विल कम एट द एंड. जो आपकी स्टेटमेंट है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. So for irreversible process, it's increased for irreversible process that comes from this. So that's what we are coming to that statement. That statement में हम आ रहे हैं, we'll take examples, because irreversibility or dissipation या friction, it's a natural thing. जैसे for example कोई भी आप काम करोगे heat generate हो जाएगी. अब हम define करते हैं adiabatic isothermal processes. While we are increasing pressure, internal energy increase होगी without not at the cost of heat. वहाँ फिर हम थोड़ा सा चालाकी करते हैं, हम कहते हैं the processes हमको fast define करते हैं, so that heat will not be evolved, so that ठीक है. So हम thermodynamic parameters में जैसे pressure, temperature, pressure, volume, they are all related, but we keep one constant, है ना, Boyle's law, Charles law में temperature and pressure है ना. Other we are keeping the other parameter constant, but it's not nature में ये हो ही नहीं पाता है. तो that's also a statement of second law that we are not able to produce. अब वो क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम पैरामीटर्स को हम ऑप्टिमाइज करते हैं इन एन एक्सपेरिमेंटल लैब. हम कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, so that we can observe direct relationship between one parameter and another parameter, ठीक है. अब वो ही है जो इनएडिक्वेसी है, how the entropy of the universe is always increasing. अगर पूरा तो that's basically things processes जो हम normally observe करते हैं, they are irreversible processes. और irreversible process है, उसकी example है mechanical irreversibility, chemical irreversibility, है ना, thermal irreversibility. For example, अगर external mechanical irreversibility आएगी, उसमें क्या आएगी, isothermal if I state them, it's isothermal dissipation of work. फ्रिक्शन ऑफ टू सॉलिड्स इन कंटैक्ट. अगर दो सॉलिड्स इन कंटैक्ट है ना, तो उसमें भी आती है ना, हाँ, सॉलिड्स इन कंटैक्ट, ठीक है. और ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू ए रेजिस्टर इन कंटैक्ट विद द reservoir. You can take it another example. इस तरह मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस सुना है ना, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस भी होता है ऑफ ए मटेरियल इन कांटेक्ट विद द रिजर्वायर. अगर कोई रिजर्वायर होगा इन क्लोज सर्किट, उसमें मैग्नेटिक
उसमें भी एक मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस से सम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हैपन्स, ठीक है। और इसी तरह ये तो हो गया हमारे पास एक्सटर्नल मैकेनिकल। अब अगर हम एडियाबैटिक डिसिपेशन देखते हैं, एडियाबैटिक डिसिपेशन किसको कहते हैं शाबाश, व्हाट्स एडियाबैटिक प्रोसेस? हीट अमाउंट इज सो, बट उसमें भी हम कैसे, अगर हम को इरिवर्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल वी कैन डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम फॉर एग्जांपल द एग्जांपल्स बी फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, ये तो एडियाबैटिक है, फ्रिक्शन from rubbing, friction from rubbing, thermally insulated, चलो liquids, चलो it's tough to thermally insulated liquids. Thermally insulated liquids means दो liquids हम लेंगे, दे आर नॉट, उनमें हीट बाहर से नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल या थर्मोमीटर में अंदर से डालेंगे कोई चीज़, तो इट्स नॉट ऑल्सो पॉसिबल। जो अगर मरकरी हम लेते हैं ना, जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, वो टेम्परेचर से वो मरकरी ऊपर नीचे जाता है ना। और ये कह रहा है कि अगर हम रखेंगे फ्रिक्शन ऑफ थर्मली इंसुलेटेड लिक्विड्स, बट स्टिल अगर उनको आपस में टकराएंगे देयर विल बी सम हीट डिसिपेशन जाएगी। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू रेजिस्टर, इसी तरह inelastic deformation of thermally insulated liquids. These are different examples. Magnetic hysteresis of a thermally insulated material. Okay, so these are different types of irreversibilities. Whether that's a thermal, पहली वाली it's a mechanical irreversibility. The other is irreversibility due to adiabatic dissipation. And you can also have not only these irreversibilities, you can also have chemical irreversibility, है ना, thermal irreversibility, mechanical irreversibility, और chemical irreversibility में क्या आएगा? शाबाश, जरा बताओ, आसान, might have studied. Simple diffusion of two dissimilar gases. एक में अगर हाइड्रोजन है, दूसरे में इनका अगर डिफ्यूज, ये अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ से ऑक्सीजन लगाओ, तो आफ्टर 5 मिनट के बाद द गैस विल बी मिक्सड, सो दे विल नॉट नेचुरली अनमिक्स, वापस स्टेट में आएंगे, मतलब दे विल हाइड्रोजन में वो ऑक्सीजन वाटर जाएगा, उधर ऑक्सीजन वापस आएगा, सो दैट्स ए नेचुरली दे विल, इट्स ए सॉर्ट ऑफ इंट्रिंसिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, दैट्स यू नो इट। और इस तरह फॉर मिक्सिंग ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, है ना, सो देयर विल बी सिस्टम में हो जाएगा तेल, सो दैट्स ऑल्सो इसी तरह फ्रीजिंग ऑफ ए सुपर कूल्ड लिक्विड केमिकल रिएक्शन। अब ये डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिवर्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी आर कमिंग टू द पॉइंट, वी डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसेस, उसका आपने एंट्रोपी, नाउ वी हैव टू डिफाइन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड एंट्रोपी का रिलेशन क्या है। सो वी आर कमिंग टू हाउ द नेचर में कितनी irreversibilities है, from mechanical to thermal to chemical irreversibilities, ठीक है। एंड जो उनकी irreversibilities जो है, फॉर एग्जांपल इन सिंपल सेंस इफ यू वांट टू, ये तो हमने इन अल्फाज में कहा ये कि व्हाट दे आर, मगर उनकी अगर हम इन टर्म्स ऑफ या मैकेनिकल irreversibility में आपके एग्जांपल आएगी आइडियल गैस रशिंग इनटू वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन, gas flowing through porous plug, या collapse of a soap film after it's punctured, ना, अगर आप, it's a good example, अगर कोई सोप फिल्म है उसको दिया क्या थोड़ा सा हल्का ही, सो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, इट्स पंक्चर्ड, फिर या बैलून फट जाता है, बट इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये स्टेट वापस भी आ सकती है, कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी नहीं वायलेट होता है, ना कोई लॉ वायलेट नहीं होगा अगर ये खुद ही वापस नहीं आता है ना, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो, सो उसी इन सब स्टेटमेंट्स की जो भी है, वेदर मैकेनिकल इरिवर्सिबिलिटी, केमिकल इरिवर्सिबिलिटी, थर्मल इरिवर्सिबिलिटी, जो भी नेचर में प्रोसेसेस हैं, बट इन प्रिंसिपल कोई चीज़ हमको नहीं रोक रहा है कि दे कैन गो फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट ए, कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, मेजर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी,
इन प्रिंसिपल ये होना चाहिए बट नहीं होता है। इसी को हम आर्टिकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ, एंड जो आप कह रहे हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। अब वही है क्योंकि यू हैव टू बी वह सब्जेक्टिव। यूनिवर्स आप किसको कहेंगे? यूनिवर्स इज ए स्मॉल थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्स को आप सभी कहेंगे, हम नॉर्मली जो कहते हैं कि इन क्लोज सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर यहाँ कोई गया इधर कोई गया इधर तो नेट इज कॉन्स्टेंट है, तो फिर हिसाब से एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। आपको यूनिवर्स एंड सिस्टम के हिसाब से डिफाइन करना है। अगर यूनिवर्स पूछो यूनिवर्स अगर एवरीथिंग के साथ पूछो एवरीथिंग के साथ एंट्रोपी एंड यूनिवर्स नहीं ना ममता वहाँ आपको नहीं पता है ना यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स ओपन है, यूनिवर्स क्लोज्ड है, यूनिवर्स फाइनाइट है, यूनिवर्स इनफाइनाइट है। तो यहाँ आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इट्स वेरी इजी टू डिफाइन। यू टेक ए बॉक्स, इट्स ए गैस, है ना, एंड यू एक्सटर्नली आप कोई डिफाइन करते हो जिसमें आप वर्क डन करते हो। यू हैव ए सिस्टम एंड यू हैव एन ऑब्जर्वर जो इस पर एक्ट करेगा, ठीक है। इट्स ए वेल डिफाइंड थिंग। ऑब्जर्वर किसको आप कहेंगे, सिस्टम किसको कहेंगे। बट व्हेन यू टेक एंटायर यूनिवर्स इन द कॉस्मोलॉजिकल सेंस, नॉट इन द थर्मोडायनेमिक कॉस्ट, तो वहाँ फिर इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर आप उसमें आता है ओपन सिस्टम किसको डिफाइन करेंगे, क्लोज सिस्टम किसको डिफाइन करेंगे। और फिर यूनिवर्स ओपन है कि क्लोज्ड है। अगर ओपन है तो दिस क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। अगर क्लोज्ड है तो देन वी शुड नो कि यूनिवर्स की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, देन यू कैन डिफाइन इट इन दैट सेंस, ठीक है। सो इट्स अ बिट, तो इसमें ये भी आता है कि फिर थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, फिर वो कैलकुलेट कितने स्टार्स है, कितना यूनिवर्स है, ठीक है। हमारी आज की ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी कहाँ है, ठीक है। दैट लीड्स टू सम डिफरेंट क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज वेदर यूनिवर्स इज एन ओपन, इट हिंज ऑन ए क्लोज्ड। If it's an open, the question becomes vague. If it becomes closed, तो फिर हम इसको ऐसे एड्रेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के तरीके से, ठीक है। अब ये है कि फॉर एग्जांपल अब इसमें सिंपली है, फॉर एग्जांपल अगर हम जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है फॉर एग्जांपल एस एफ माइनस एस आई, तो ये है फॉर टेम्परेचर टी आई टी एफ। तो यू कैन हैव फॉर एग्जाम्पल यहाँ डी के ऊपर डी टी है ना, तो यू कैन ऑल्सो हैव है ना स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट, यू कैन डिफाइन डिफरेंट प्रोसेसेस, तो यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस। तो सी एफ माइनस सी एफ ये आ गया ऐसे, टी एफ मीन्स फाइनल टेम्परेचर, टी आई मीन्स सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो दिस इज फॉर वन वे यू कैन पुट इट। इन द सेम वे आप अगर आपके पास ये है हमारे पास, अगर हम इसको अब ये तो एक तरीके से, अब इसको हम अगर डिफाइन करेंगे डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ पी डी वी, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, या आप कांस्टेंट वॉल्यूम भी रख सकते हैं, फिर आपको वी डी पी लेना है ऐसे, ठीक है, प्रेशर। बट हम नॉर्मल लेते हैं एक पैरामीटर को लेते हैं, अगर ऐसे डिफाइन करेंगे पीडीवी को दिखाएंगे तो यू कैन ऑल्सो, और तो पीडीवी फिर आप उसको लिखते हैं ऐसे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये आप तो एस एफ माइनस एस आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आर लॉग ऑफ बी एफ आई, ठीक है। दिस इज डिफरेंट वेज ऑफ defining the system and how we can define the change in entropy for the system for a reversible process, but keeping one of the parameters as constant, ठीक है। But these different examples show us again and again that these things are not possible. There is an intrinsic irreversibility of a system. अब ये है कि आप इसी चीज़ को मैं आई जस्ट कम टू माई फाइनल पार्ट ऑफ इट। फाइनल पार्ट ऑफ इट जो ये था एंट्रोपी एंड रिवर्सिबिलिटी। नाउ आई जस्ट जो हम स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी एंड इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो या और चलो इसको ऐसे ही रखो, इरिवर्सिबिलिटी पार्ट ऑफ
second law. Okay, so we define reversible processes, either normal reversible processes or equilibrium states from state A to state B, dynamically equilibrium states that will also mimics as if it's a reversible process. ठीक है, अब हम जो भी, क्योंकि इन दीज ऑल एग्जाम्पल्स वेदर इट वाज केमिकल इरिवर्सिबिलिटी, मैकेनिकल इरिवर्सिबिलिटी, थर्मल इरिवर्सिबिलिटी, तो देयर इज ए नेचर थिंग्स आर इंट्रिंसिकली इरिवर्सिबल. तो उसको हम कैसे स्टेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो मैंने कहा था, अगर हम कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस को इन ए क्लोज्ड साइकिल लेंगे, इट विल बी जीरो, या एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट होगा ना सेम, दैट इज इक्वल टू जीरो. बट अगर एस एफ माइनस एस आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज इफ वी डिफाइन ए सिस्टम कि जो कोई भी प्रोसेस है इट इज इंट्रिंसिकली इरिवर्सिबल. ठीक है, वहाँ तो पहले इधर वी टुक एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम, और वी टुक टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बट वहाँ तक तो ये स्टेटमेंट ठीक है. मगर इफ वी टेक इंट्रिंसिकली जो एंट्रोपी ऑफ द फाइनल स्टेट एंड एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट नहीं आएगी, बिकॉज जब आप सिस्टम को वापस करोगे ना, वापस लाने की कोशिश, एट सम स्टेज सम हीट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू. ठीक है, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू अराइव एट द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन नाउ स्टेट दिस स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है, अब इसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ अगर आप डायग्रामेटिकली कैन गो टू बुक एंड यू कैन सी, यहाँ पर अगर आप रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 देंगे, उसके साथ हीट मतलब हीट जब सिस्टम में देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इट्स वर्क डन, इट्स टेम्परेचर. अब इसमें Kelvin Planck statement के combined system exchanges heat with single resistance, so dq cannot be positive. ये Kelvin statement, Kelvin Planck statement है, dq cannot be positive. dq cannot be positive मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस में मतलब कोई हीट लाएंगे फ्रॉम मतलब टेम्परेचर जिसका ज़्यादा हो, एंड इट विल गो टू, सो इट विल बी ऑलवेज लेसर देन व्हाट हैज रिमेन्ड ऑलरेडी, सो it cannot be greater, so that's why so entropy of a system in a reversible process है. रिवर्सिबल प्रोसेस हमने डिफाइन किया पहले कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, व्हाइल यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम बी टू ए, इट्स नॉट एंटायरली पॉसिबल विदाउट डिसिपेशन ऑफ सम एनर्जी. ठीक है, विदाउट टेकिंग, यू हैव टेकन सम एनर्जी फ्रॉम द रिजर्वियर, है ना, एंड विच यू कैन नॉट गिव इट बैक, सम पार्ट ऑफ इट इज डिसिपेटेड. सो द सिस्टम में कुछ एनर्जी लेस होता है, उसी को हम कहते हैं ये, इसी को हम फिर इन टर्म्स ऑफ अगर हम इन टर्म्स ऑफ जो स्टेटमेंट दी है क्लॉसेस ने इसको स्टेटमेंट दी है ऐसे, dq/dt इज लेस देन, और अगर हम दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हम ये स्टेटमेंट को कंडेंस करेंगे, तो हम यहाँ इंडिकेट लगाएंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, closed system, or it can be true for entropy of the reversible process as well as for reversible process it can be 0, for irreversible process it can be less than 0. So basically this is for closed process. For open processes then you can define entropy, you can take state A, SF minus SI. So we are saying entropy of the
reversible processes is either greater than 0 or less than 0. For reversible process it's greater than 0, it's equal to 0. For it is less than. So this is the, so अब ये है कि यहाँ पर हम I'll just end it. So I'll use a statement ये है हमारे पास, चल जाएगी. So equality of reversible cycles and inequality of irreversible cycles. So this जो ये स्टेटमेंट है, अगर इसको हम ऐसे भी कहेंगे, जो रिवर्सिबल साइकिल्स होते हैं दे आर इक्वल, उनका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, और जो इरिवर्सिबल साइकिल्स होते हैं दे आर इनइक्वल. अगर फॉरवर्ड अगर यहाँ से आए है ना, यू आर जिस तरह कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इफ यू ट्रांजेक्टरी को ऐसे आप कंजर्वेटिव फोर्स में है ना, इट विल ओनली वर्क डन विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द, उसी को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं a to b f dot dr. कहते हैं ना वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड में वैसा केस. So in the same way you can define the language of your A vector integral calculus, how we define state A to state B. So for reversible processes, which may be natural reversible processes or reversible processes mimicking reversible processes, means we define two equilibrium states, dynamic equilibrium states from state A to state B. Or for non-equilibrium, for non-reversible, for non-reversible processes. So and uska equivalence hai, there is equality of reversible cycles are equal and irreversible processes are unequal, which is given by Clausius. इसका इसमें ठीक है.